Now we start sample paper maths standard 2021-2022 for the 10th standard. Section C, case study based question. This question, here is one case is given and we have to answer the question. In section C consists of the question 1 marks each. Any 8 questions are to be attempted. Question number 41 to question number 45 are based on the case study number 1. यहाँ केस स्टडी नंबर 1 है. इसके अंदर ये बाथिंग पूल है. यह जंप लेने के लिए जो बेड होता है वो बेड है. बेड की हाइट है 48 फीट. यहाँ से जंप लेते हैं तो पैराबोला शेप में होते हैं. यहाँ वाटर है. In the figure given alongside shown the path of the diver when she takes a jump from the diving board. Clearly it is a parabola. ये शेप कैसा है? पैराबोला. Annie was standing on the diving board 48 feet above the water. वाटर से 48 feet above है. She took a dive in the pool and her height in the feet above the water level at the any time t in the second is given by the polynomial st such that ht equal to minus 16t square plus 8t plus k. This is the equation. h is height का equation है. st equal to minus 16t square plus 8t plus k, time in second, height in feet. Now we have to answer. Now we start in section C, question number 41. What is the value of k in above the case study? Option is given. The answer C 48. Now we start the solution. At time t equal to 0. Initially time t 0 था. At the height is 48 feet. At time t, Ami was on the diving board, which is at the height of 48 feet above the water level. Therefore, we take t equal to 0 and st equal to 48. By putting the value st equal to 48 and t equal to 0, so st equal to minus 16t square plus 8t plus k. At h of 0 equal to 16 into 0 square, 8 into 0 plus k. But h of 0 कितना था? 48 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस के. therefore k इक्वल टू 48. तो इनिशियली मतलब कि k की वैल्यू कितनी थी? तो 48. हमने क्या किया कि इनिशियली बोर्ड पे थी, वो टाइम पे टाइम 0 था, तो t इक्वल टू 0 लिया. वैल्यू t इक्वल टू 0 इक्वेशन के अंदर पुट कर दी तो k की वैल्यू हमको कितनी मिली? तो k इक्वल टू 48. तो ऑप्शन सी इज ट्रू. Now we start question 42. At what time will she touch the water in the pool? कौन से टाइम पे अनी वाटर को टच करेगी? ऑप्शन दिया हुआ है 30 सेकंड, 2 सेकंड, 1.5 सेकंड, 0.5 सेकंड. आंसर बी 2 सेकंड. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. st equal to minus 16t square plus 8t plus k. But we in question number 1 we find the value of k 48. st equal to minus 16t square plus 8k plus 48. Now when she touched the water, therefore height equal to 0. So we put the height st equal to 0 equal to minus 16t square plus 8t plus 48. We change the side. 16t square minus 8t minus 48 equal to 0. Now 8 is common. 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 6 जा 48. Therefore 2t square minus t minus 6 equal to 0 upon 8 means 0. Therefore 2t square minus t minus 6 equal to 0. Now we factorize. 2 into 6 12. So split into 12 into 2 part. So that we obtain the 1. 2t square minus 40 plus 3t. minus 4 plus 3 तो means minus 1.
2t square minus 4t plus 3t equal to minus 6 equal to 0. Now taking 2t common from first two term, 2t in bracket t minus 2 plus 3 is common in third and fourth term, t minus 2 equal to 0. Therefore t minus 2 into in second bracket 2t plus 3 equal to 0. So therefore t minus 2 equal to 0 or 2t plus 3 equal to 0. Therefore t equal to 2 and 2t equal to minus 3. Therefore t equal to minus 3 upon 2 less than 0. Negative time cannot possible. Therefore time for touching the water t equal to 2 seconds. This is the answer. Now we start question number 43. Rita's height in feet above the water level is given by the another polynomial pt with zeros are minus 1 and 2. Then pt is given by dash. Here option is given. The answer is D, minus 24t square plus 24t plus 48. Now we start the solution. Here what is the given? The zeros of polynomial are minus 2 and 1. The pt equal to k in bracket t square minus alpha plus beta into t plus alpha beta. Here alpha is 1 0 and beta is second 0. So 1 0 alpha equal to minus 1, beta equal to 2. Therefore pt equal to k in bracket t square minus 1 plus 2. Alpha की वैल्यू minus 1, beta की वैल्यू 2 into t plus minus 1 into 2. Therefore pt equal to k in bracket t square 2 minus 1 तो 1t minus 2 k not equal to 0. Now we taking the t equal to 1, k not equal to 0 means we take the k t equal to 1, k equal to 1, k equal to 2, k equal to 3 according to given option. Here coefficient of t square is 1, here is 1, here is 24, here is minus 24. So by which value? By putting we get value the option. So by taking k equal to minus 24, p of t equal to minus 24 in bracket t square minus t minus 2. So minus 24 t square minus into minus plus 24 t plus 48. देखो आपने ये सम इम्पोर्टेंट है. तो हमने क्या किया, अपने को दिया हुआ है कभी सम ऑफ जीरोज आर माइनस 1 एंड 2 दोनों जीरो दिए हुए हैं. बट हम फॉर्मूला जानते हैं पी टी इक्वल टू के इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0. फिर एक अल्फा इक्वल टू फर्स्ट 0 माइनस 1 बीटा इक्वल टू माइनस 2 हम लेंगे. तो पी ऑफ टी इक्वल टू के इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू 2. तो हमको क्या मिला, पी टी इक्वल टू के इन ब्रैकेट टी स्क्वायर 2 माइनस 1 तो 1t माइनस 2 के इक्वल टू 0. अभी हमको क्या अभी आंसर फाइंड करने का है. तो पहला ऑप्शन है प्लस टी है, ये माइनस टी है, यहाँ 2t है, यहाँ माइनस 1 है, 24t है, माइनस 24 पर 2 नेगेटिव है, यहाँ 48 पॉजिटिव है, माइनस 24. तो के को हमको कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सपोज हम t इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 पुट करेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 मिलेगा. अभी k इक्वल टू माइनस 24 लेंगे तो माइनस 24 के की वैल्यू पुट कर दी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करने से आंसर मिला पी टी इक्वल टू माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48 विच इज़ द गिवन ऑप्शन नंबर डी. जो ऑप्शन डी है अपने को दिया हुआ है ये 48 वाला ये ऑप्शन है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 44. A polynomial qt, polynomial in form of qt in form of t with the sum of 0 is 1 and product of zeros are minus 6 is modeling Anu's height is a feet above the water level at any time t in second. Then qt is given by the following option. Here answer is C,
minus 8t square, 8t plus 48. Now we start the solution. The polynomial in form of t, तो qt alpha and beta be 20. We know the formula, हम formula जानते हैं. qt equal to k in bracket t square minus alpha plus beta into t plus alpha into beta. ये सम ऑफ 0 है, ये प्रोडक्ट ऑफ 0 है, तो सम ऑफ 0 कितना है 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है -6. हम 1 एंड -6 पुट करें तो क्यू टी इक्वल टू के इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस टी 1 इंटू टी प्लस -6, तो क्यू टी इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6. तो यहाँ के कॉन्स्टेंट कोई भी दिया हुआ है, तो अभी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम ढूंढेंगे. तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ टी स्क्वायर भी है, प्लस टी है तो यहाँ माइनस टी है, प्लस टी है तो यहाँ माइनस टी है. यहाँ 8 टाइम टी दिया हुआ है, तो 8 टाइम टी, तो यहाँ हम ट्राई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करके. तो कोएफिशिएंट कितना है -8, तो के इक्वल टू -8 से पुट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे. क्यू टी इक्वल टू -8 इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6. वी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्यू टी इक्वल टू 8t स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 8t, 8 6 48, तो क्यू टी इक्वल टू -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48 मीन्स ऑप्शन सी इज आंसर. Now question number 45. The zeros of polynomial r of t, पहले p था बाद में q, अभी r का यूज़ किया. r of t माइनस 12t स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट k माइनस 3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू t प्लस 48 आर नेगेटिव. जीरोज आर नेगेटिव दिया हुआ है, इसके बड़े ए भी यूज़ कर सकते हैं. जीरोज आर ऑपोजिट, जीरोज आर एडिटिव इनवर्स of each other, then value of k option is given. तो आंसर ए 3 आएगा. r of t इक्वल टू -12t स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट k माइनस टी इंटू टी प्लस 48, तो a इक्वल टू -12 होगा, b इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट k -3 होगा और c इक्वल कितना होगा -8. c इक्वल टू 48. नाउ जीरोज आर नेगेटिव और ऑपोजिट और एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर, देयरफॉर b अपॉन a इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स b इक्वल टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या है? तो माइनस इन ब्रैकेट k माइनस 3 इक्वल टू 0, k माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन -1 तो 0, देयरफॉर k इक्वल टू 3 मीन्स ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन ए कितना मिला? 3. नाउ केस स्टडी नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 46 टू 50, 46 से 50 तक केस 2 को स्टडी करने का है एंड इसका आंसर देने का है. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई हॉकी फील्ड है, प्लेइंग द सरफेस फॉर द गेम्स ऑफ हॉकी और हिस्टोरिकली गेम वॉज प्लेड ऑन द नेचुरल टर्फ मिस ग्रास, बट नाउ ए क्ले इट इज़ द predominantly play on an artificially turf. It is rectangular shape in 100 meter length and 60 meter breadth ground. ये 100 मीटर लेंथ है, ब्रीथ है 60 मीटर. एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर है कैसे तरह खड़े हैं, मतलब इसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फॉरवर्ड पोजीशन पे as shown by the player A, B, C, D. मिडफील्डर सेम पोजीशन पे प्लेयर E, F, G एंड बल्क फुल ब्लैक पोजीशन पे H, I, J एंड गोली एज द पोजीशन के. ये सब प्लेयर की पोजीशन है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J एंड K. जहाँ पिक्चर क्लियर की ड्रॉ किया हुआ है, तो पिक्चर पर से हमको आंसर देने का है. ये पिक्चर के अंदर किस टाइप का कोऑर्डिनेट है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ भाई ये किस टाइप का ये है.
देखो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो डायग्राम के ग्राफ पेपर पे होना चाहिए, तो मैंने यहाँ सिंपली ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ ये हम देखेंगे तो किस टाइप का है मैं आपको दिखाऊंगा। देखो डायग्राम में दिया हुआ है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ऑन पॉजिटिव साइड है, -1 -2 -3 4 नेगेटिव साइड है। वाई एक्सिस पे अप साइड 1 2 3 4, डाउन साइड -1 -2 -3 -4 -5। ये प्लेयर ए की पोजीशन है, प्लेयर बी की पोजीशन है, प्लेयर सी की पोजीशन है, प्लेयर डी की पोजीशन है, ई की पोजीशन, एफ की पोजीशन, जी की पोजीशन, एच की पोजीशन, आई की पोजीशन, जे की पोजीशन और के की पोजीशन। ये सब प्लेयर की पोजीशन है। तो पोजीशन है, हमने क्या करेंगे, कभी पहले ए की बात करें, ए की पोजीशन तो 1 2 3 लाइन पे कौन सा नंबर पे है, तो 6 नंबर पे है, तो 3 6। तो पोजीशन ऑफ ए मिला, कोऑर्डिनेट 3 6। पोजीशन बी तो 4 3। पोजीशन बी एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट है, वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट है, तो 4 3 है। सी सिमिलरली सी पोजीशन 4 -1, डी पोजीशन 3 -4, ई पोजीशन 2 1, एफ 1 5, जी 1 -3, एच -2 4, आई -1 1, जे -2 2, के -4 n 1। ये सब प्लेयर की पोजीशन दिया है। तो हमने क्या किया, अब फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने कोऑर्डिनेट इसके लिख दिए। तो आगे हम अभी सॉल्व करते हैं सम। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 46। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रॉइड ऑफ ई एच जे। 3 प्लेयर है, ई एच एंड जे, और ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसका सेंट्रॉइड का ट्राइंगल सपोज कर दो, तो इसका सेंट्रॉइड क्या होना चाहिए। ये जो ऑप्शन दिया है, आंसर ए -2/3 n 1। एस पर फिगर हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो ई का कोऑर्डिनेट है 2 1, एच का कोऑर्डिनेट है -2 4, जी का कोऑर्डिनेट है -2 -2। फिर फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड के फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ई एच जे x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये क्या है, सेंट्रॉइड की फॉर्मूला है। हम अभी x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू -3/3, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू -2/3। तो 2 2 कट हो गया, तो -2/3, 3/3 1। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ई एच जे -2/3, 1 मीन्स ऑप्शन ए -2/3 1 इज आंसर। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इफ ए प्लेयर पी नीड टू बी एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी जी आर स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हो तो कोलिन इधर दिया होगा, देन द पोजीशन ऑफ पी विल बी गिवन बाय दिस ऑप्शन दिया है। तो आंसर इज सी 2 3/2। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। ए पी एंड जी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो पी क्या है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे है, तो पी मिड पॉइंट हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3 6 है, जी 1 -3 है। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला हम जानते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2 = y। तो x के लिए 3 + 1/2, y के लिए 6 -3/2, 3 + 1 4/2, 2 2 जा 6 - 3 3/2। तो y = अपने को क्या मिला, तो 3/2। therefore x = 2, y = 3/2। ऑप्शन सी इज आंसर। Now we start question number 8. The point on x-axis equidistant from I and E is this. Option is given. Answer is A 1/20.
नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन. पॉइंट P x0 और x एक्सिस. x एक्सिस पे એટલે हमको x को लेना पड़ेगा, y 0 लेना पड़ेगा. अगर y एक्सिस होता है तो x की वैल्यू 0 लेते हैं और y की वैल्यू y या कोई भी सपोज कर सकते हैं. तो पॉइंट ऑन x एक्सिस P x0, P a0, P k0 हम कोई भी ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ P x0 लिया हुआ है. I का कोऑर्डिनेट है -1 1, E का कोऑर्डिनेट है 2 1, PI इक्वल टू PE, PI स्क्वायर इक्वल टू PE स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड. नाउ यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, x + 1 होल स्क्वायर 0 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 होल स्क्वायर. दोनों साइड इक्वल साइड कट हो गया. इसे एक्सपांड कर लिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर 2 2 जा 4x 2 स्क्वायर 4. दोनों साइड x पर कैंसिल हो गया. तो 4x ये साइड लाए, 4x प्लस 2x इक्वल टू 4 - 1, 6x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/6, 1/2. तो हमको x की वैल्यू कितनी मिली? x की वैल्यू मिली 1/2. तो पॉइंट ऑन x एक्सिस P 1/2 0 मीन्स ऑप्शन ए इज आंसर. हम कौन सा आंसर मिला? तो ऑप्शन ए 1/2 0 इज आंसर. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 49. What are the coordinate of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K Q E are the collinear? Option is given. Option answer is B 0 1. Now we start the solution. The coordinate of K तो -4 1, E तो 2 1, Q सपोज किया हमने, XY सपोज किया. तो एक्चुअली क्या था, ये कोऑर्डिनेट हमने आगे जो ग्राफ पेपर पे लिखे थे इसमें से हमने लिए हैं. तो यहाँ डायग्राम से हम समझेंगे का पॉइंट Q है, ए का डिस्टेंस Q और E का डिस्टेंस से डबल है. ये डिस्टेंस को हमने x सपोज किया तो डबल मिले 2x सब हुआ. तो KQ इक्वल टू 2x, QE इक्वल टू x. लेट QE इक्वल टू x, KQ इक्वल टू 2x मीन्स डबल द डिस्टेंस. QXY डिवाइड K in रेशियो KQ अपॉन QE मीन्स 2x अपॉन x मीन्स 2/1. तो विच रेशियो M1 is to M2 इक्वल टू 2:1. पर हम सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं, x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. तो M1 की वैल्यू 2 पुट कर दी, x2 की वैल्यू हम जानते हैं तो 2 है, प्लस M2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -4/2 प्लस 1, 4 - 4 इक्वल टू 0/3. 0/3 क्या होता है? तो 0 होता है. तो हमने लिख दिया x इक्वल टू 0. सिमिलरली y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, 2 × 1 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3/3 मीन्स 1. तो y इक्वल टू 1. तो पॉइंट Q XY Q 0 1 0 विच 0 1. तो ऑप्शन बी इज आंसर. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करेंगे. द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C. ऑप्शन इज गिवन. तो डी आंसर 0 and 1. लेट पॉइंट P ऑन y एक्सिस दिया है. आगे वाला क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ऑन x एक्सिस था, हमने क्या लिया था x0. पॉइंट ऑन y एक्सिस है तो हम पॉइंट लेंगे P0y. B कोऑर्डिनेट है 4 3, C कोऑर्डिनेट है 4 -1. जो हमने जो प्लेग्राउंड जो ग्राफ बनाया था इसमें से लिया. जब इक्विडिस्टेंस पे है therefore PB इक्वल टू PC विच इज़ गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है. स्क्वायरिंग बोथ साइड PB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर PC स्क्वायर. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 0 - 4 होल स्क्वायर y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - 4 होल स्क्वायर y -+1 होल स्क्वायर. ये दोनों साइड इक्वल से कट हो गए. तो एक्सपांड किया y स्क्वायर 3 2 जा 6y, ए स्क्वायर 9, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, y स्क्वायर कैंसल. तो 9 इसको ये साइड चेंज किया तो 8 हो गया. यहाँ 2y प्लस 6y 8 इक्वल टू 8y हुआ.
कि अब वाई इक्वल टू 8/8 तो 1, तो वाई की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। तो पॉइंट ऑन वाई एक्स इज इक्वल टू P0y। तो यहाँ हम ये स्टैंडर्ड पेपर 1 to 50 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना, तो जैसे हम आपको दूसरे वीडियो हम भेज सकेंगे। हम एवरी वीक 1 या 2 वीडियो हम भेजेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको पेपर लिखने में आउट ऑफ मार्क्स लाने में इजी पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच।